you were preparing for your board examinations, had made a proper timetable, and was consistently following that. But one of your friends had called you to make you aware about the upcoming pre-board examination, and now you are thinking to not give the pre-board examination. So this is the biggest mistake you are about to do. To know it, watch the video till the very end. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Ayushi, currently in class 11th, here to help you all guys. So without wasting our time, let's quickly start the video. Firstly, pre-boards are really very important. So don't skip the pre-boards. Now you will say, दीदी हमारा तो syllabus ही नहीं हुआ है और हम pre-board कैसे दें? I know your syllabus hadn't completed yet, but still you have to give the pre-board examination, because when you will give pre-board examination, you will be in the same atmosphere where you have to give your board examination. You will have that same anxiety and same exam atmosphere. You will have same 3 hours in which you have to complete the whole paper. You will understand the time management skills. Now, how to complete the syllabus till pre-boards? क्या आपको पूरा syllabus complete करना है या फिर जितना हो गया उतना ही करके जाना है, या फिर एनी हाउ हम pre-boards के लिए सारा syllabus complete कर लेते हैं and after pre-boards we will move towards कि हम और अच्छे से चीज़ें करें. So let me answer all this question. Firstly, prefer quality over quantity. See, don't focus on just completing the syllabus. Ki like your pre-boards are in 7 days or next 15 days or maybe going on. So you are completing the syllabus in whole night before the exam, and like merely for the sake of thinking कि yes मेरा हो चुका है. तो ऐसा मत करना. कंप्लीट द सिलेबस वेरी प्रॉपरली. लाइक अगर आपको पूरा सिलेबस नहीं भी हो पा रहा है, जितना पर्टिकुलर पोर्शन हुआ है, डू इट वेरी प्रॉपरली. कि लाइक उसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है, यू विल बी एबल टू आंसर इट. यू विल नो कि उसका कैसे करना है. लाइक इन केमिस्ट्री there are 4 chapters and your 3 chapters had completed and you don't know about carbon and compound. like वो आपका हो गया है but अच्छे से नहीं हुआ है. so just skip it and focus on this 3 chapters only कि इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो वो आपको नहीं छोड़कर आना है. so yes, this is the first tip you can tell कि प्रेफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. कि आपको क्वालिटी वाइज सिलेबस करना है. ऑल्दो अगर आपका पूरा सिलेबस नहीं हो पा रहा है तो जितना हो पा रहा है डू इट वेरी प्रॉपरली. सेकेंड टिप इज डू वेटेज वाइज चैप्टर. इट मीन्स व्हाट कि एवरी चैप्टर हैज़ अ पर्टिकुलर वेटेज कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से इतने मार्क के क्वेश्चन पेपर में आएंगे और इस पर्टिकुलर चैप्टर से इतने मार्क के क्वेश्चन आएंगे. CBSE डोंट रिलीज द वेटेज according to chapter. It gives unit wise weightage, and for knowing the chapter wise weightage of each and every chapter, you can take help from ChatGPT or also analyze the sample papers released by official CBSE, because the weightage of official CBSE sample paper is that which will going to be in your board examination. So you can take help from there and complete the syllabus likewise. लाइक अगर फिज़िक्स की बात करें तो फिज़िक्स में इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं. और जो हमारा सेकंड चैप्टर है फिज़िक्स का, दैट इज़ आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, मे बी इट इज़ दैट, आई डेंट रिमेंबर. तो उसमें से कम क्वेश्चंस आते हैं, इतना ज़्यादा नहीं आता. और आता है तो फिर आई के वाले डायग्राम जो होते हैं कि उसे कैसे करेक्टेशन किया जाता है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, उसकी वो जो करेक्टेशन वाले डायग्राम है कि वो कैसे होता है, वो सभी आता है उसमें से ज़्यादातर. सो यू कैन गो फॉर दैट अकॉर्डिंग टू द वेटेज ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर. नाउ थर्ड इज़ की ठीक है हमारा सिलेबस हो गया है हाफ, जो कि हमने बहुत अच्छे से कवर किया है बाय फोकसिंग ऑन इट्स क्वालिटी. वी हैव प्रिफर्ड द हाई वेटेज चैप्टर्स इन फर्स्ट एंड completed them very properly. And now you are going for your pre-board examination and giving it. और जो पर्टिकुलर चैप्टर्स आपके नहीं हुए हैं, डोंट लुक एट दैट, क्योंकि यू कैन डू एनीथिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर चैप्टर. की हिस्ट्री में आपके स्टार्टिंग के चैप्टर्स हो गए थे 3 प्रैक्टिकल, जैसे कोई 5 मार्क क्वेश्चन आ गया and you was unable to solve that particular answer and now you are stressed कि भाई मेरा एक क्वेश्चन छूट गया 5 मार्क्स का. so don't do this, because
आपने वो चैप्टर प्रिपेयर ही नहीं किया है तो व्हाट्स द लाइक वो अभी सोचकर उस पर ओवर थिंक करने से कोई फ़ायदा नहीं है। रैदर यू कैन गो फॉर कि उन 3 चैप्टर्स में से मुझे सब आता था येट मैंने क्या मिस्टेक की है। सो द थर्ड इज़ यू हैव टू फोकस ऑन एनालाइजिंग द प्री बोर्ड एग्जामिनेशन। लाइक आपने पेपर दिया येट जो सिलेबस आपको आता था उसमें से आपने जो मिस्टेक की है एनालाइज दैम वेयर यू आर डूइंग मिस्टेक्स एंड इम्प्रूव दैम। सी डूइंग मिस्टेक्स इज़ नॉट अ wrong thing but not improving that is a wrong thing. So when you are doing a mistake analyze it and as more mistake you can do, just do it when you are solving your mock test paper, when you are doing your sample paper or while you are giving your pre-board examination, so that you can avoid these all mistakes while giving your board examination. So yes, do this. And now fourth tip is solve सैम्पल पेपर रिलीज बाय ऑफिशियल CBSE बाय द वेज यू कैन डू। लाइक अगर आपके प्री बोर्ड उसके पहले आप सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हो तो पहले ही सारे टिप्स लगा लो कि फॉर एग्जांपल मैथ्स में मैं सबसे पहले जो 5 मार्क के क्वेश्चन आते थे वो करती थी, फिर उसका जो 3 मार्कर है वो, दैन 2 मार्कर क्वेश्चंस, और आफ्टर दैट आई यूज टू गो टूवर्ड्स केस स्टडी एंड देन एट द एंड MCQ वाला पार्ट। तो इट वॉज फॉर मी एंड यू कैन ऑल्सो चेक कि आपके लिए कौन सी स्ट्रेटजी बेस्ट है, कहाँ से आपको प्रेफर करना चाहिए, कौन सा सेक्शन यू शुड डू इन फर्स्ट। सो एनालाइज दिस पर्टिकुलर थिंग हेयर ओनली, क्योंकि एट द एंड यू हैव टू गिव योर बोर्ड एग्जामिनेशन। वहाँ पर आपको सोचना ना पड़े कि मैं पहले ये सेक्शन करूँ या वो सेक्शन। यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर ईच एंड एवरीथिंग। लाइक यहाँ पर ही पूरी प्रैक्टिस करके चले जाना। नेक्स्ट थिंग विच यू हैव टू डू इज़ रिवाइज द सिलेबस। सी अगर आप आगे का सिलेबस करते जा रहे हो और पीछे का भूलते जा रहे हो, सो इट विल गोना क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू कि आप एट द लास्ट वाले चैप्टर पे पहुंच गए। हिस्ट्री के आपने प्रिंट कल्चर वाला चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लिया बट आपको अभी वो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप ही आप भूल चुके हो, आपको उसमें नहीं पता है कि कैसे चीज़ें थी उसके अंदर। सो डोंट डू दिस थिंग, रिवाइज वेरी प्रॉपरली, focus on revising syllabus as more you can, invest the time very properly, manage it on revising the syllabus, and you have to allot the time, and this is the time where you have to study because everyone is studying. So this is not the time for getting distracted, this is not the time for scrolling Insta reels. Just do study, because if you hadn't studied till now you can even score your targeted percentage by studying from now only. You still have the time if you are consistent, if you really wants to score. So that's it for today's video. Let me know in the comment section on which topic you need more videos. Thanks for watching.